Welcome. In B part of lecture 7, in 7th lecture we started implicit functions and there we solved 3 questions. In today's lecture we will solve 2 more important questions based on this topic. In this playlist partial differentiation we will cover these total 8 topics, and I already told you in my first lecture of partial differentiation A part these are the topics which we will cover in the complete playlist, and up to 6th lecture we have covered homogeneous functions and change of variables, composite functions, and in 7th lecture I started the implicit functions, and in A part I have solved these 3 questions. ठीक है, तो in today lecture, that is the lecture 2nd B part, we will solve these 2 questions, that is question number 4th and question number 5th. The statement for 4 is, if u is equal to x log of xy where x square plus y cube plus 3xy equal to 1, यानी ये implicit relation आपको given है in x and y variable, and required question is du by dx. I have to find the value of u with respect to x, yani y depend upon x. Here is only 2 variables f and x, so here I can't calculate the relation between y की वैल्यू वैसे तो होता है कि आप यहाँ से निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए and then take the total derivative, but this is implicit functions, so it's a relation of x and y, and u जो है that is function of x and y, and here is the requirement, u is composite function of x, y is also function of x here. ठीक है, ये हमें देखना है क्योंकि बिकॉज देखिए यहाँ पे du by dx है, टोटल डेरिवेटिव कंसिडर द रिक्वायर्ड किया हुआ है. तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो हियर जो रिलेशन आपको गिवन है, आई एम टेकिंग एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy minus 1. Now I will calculate partial derivative of f with respect to x. So what is the value of curly f by curly x? So curly f by curly of x, partial derivative of this with respect to x. So when we differentiate with respect to x, y is treated as constant. So the derivative of y cube will be 0. Curly f by curly x equal to पावर आगे एक कम, तो ये आप पावर आगे कर दीजिए. एज यू नो द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है. दिस इज n x की पावर n minus 1. सो आई यूज दिस हेयर. तो इट गिव्स यू 3x स्क्वायर. y क्यूब कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 0 प्लस 3y. दिस इज कांस्टेंट बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ x, मल्टीप्लाई में होगा. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये नहीं करना. दिस इज 3y इंटू में 1 and derivative of 1 constant derivative is 0. Now again partially differentiate, write this as equation number 1 and wrote here partially differentiate 1 with respect to y. When I differentiate with respect to y, my x will be treated as constant, so derivative of x cube here will be 0 and y cube again the same formula, just here d by dy of y की n. तो पावर आगे एक कम क्योंकि y के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो हेयर यू विल ऑब्टेन 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स एज इट इज, बिकॉज व्हेन y के साथ डेरिवेटिव करोगे तो 3x कांस्टेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, एंड y का डेरिवेटिव इज 1. सो आई ऑब्टेन दिस. टू फाइंड du बाय d ऑफ x, आई नीड dy बाय d ऑफ x, एंड इन द a पार्ट आई टोल्ड कि dy by d of x for implicit function is given by minus curly f by curly x upon curly f by curly y. How to memorize? देखिए, जिसके साथ नीचे है उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव अबो टर्म में आएगा, और जिसके साथ ऊपर है उसके साथ आप पार्शियल डेरिवेटिव f का नीचे लिखेंगे. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f of x ओवर f of y, क्योंकि
एफ के पैरों में अगर एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या था, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2, एंड कर्ली एफ बाई कर्ली वाई फ्रॉम इक्वेशन 3, putting all these values in equation number 4. So it gives minus sign here. Its value is 3x square plus 3y, and curly f by curly y is 3y square plus 3x. Take 3 outside and cancel out. So here will be 1. ठीक है, तो this is y square plus 3x. ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो, this is the statement. What is the value of u is x log of x y. तो यानी कि u किसका फंक्शन है आपका, here u is function of two variable x and y. u function of two variable है, तो टोटल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, पहले आप डिफरेंशिएट करके u का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, तो दिस इज कर्ली u बाई कर्ली x इंटू में dx बाई dx आएगा, दैट इज 1, तो नो नीड टू राइट हियर, प्लस देन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल, तो इट गिव्स कर्ली u बाई कर्ली y इंटू dy बाई dx. So write it equation number 5. Now I need curly u by curly x, curly u by curly y, dy by dx. The value of dy by dx is from 4th A. ठीक है, it's a value of dy by d of x. What is the value of u here? u is x log, u is equal to x log x. ठीक है, now partially differentiate u with respect to x. तो कर्ली u बाई कर्ली ऑफ x, u इज x log ऑफ एक्स वाई, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इट गिव्स x कर्ली बाई कर्ली x ऑफ log ऑफ एक्स वाई प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आप लिखेंगे यहाँ पे कर्ली बाई कर्ली x और वो x के साथ ही, तो आप इसको d बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, एंड द log ऑफ एक्स वाई एज इट इज. तो दिस इज x डेरिवेटिव ऑफ log 1 बाई एंगल, यानी कि 1 बाई एक्स वाई इंटू में इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव. आपसे मिस्टेक होगी यहाँ पर, आप इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने log का डेरिवेटिव लिखा 1 बाई एक्स वाई. ठीक है, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 हियर. ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड दिस इज log ऑफ एक्स वाई. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y. तो पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y. व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये तो आपका एज ए कांस्टेंट होगा, तो यू कैन टेक दिस आउटसाइड. तो आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना किसका है, दिस इज y हियर, तो आपको log ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करना है. तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला हियर, इट्स x log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय जो भी आपका यहाँ होता है वो डिवाइड में जाता है. ठीक है, इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. अब इनसाइड टर्म कौन है आपकी, x इंटू वाई. आप डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हो, y के साथ. जब y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड इनटू में 1, तो इट गिव्स यू x बाय y. ठीक है, तो यू ऑब्टेन दिस. तो राइट दिस इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 4a 6th and 7th in equation 5. So I put these values here. In place of curly u by curly x, I put 1 plus log xy plus this plus sign, curly u by curly y is x by y from equation 7, into में minus this x square plus y and y square plus x. अब इसमें आप क्या सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं, you can write it 1 plus log of xy as it is. This minus sign, this plus gives you minus sign. Here x multiply with x square plus y and lower term में आपका आ जाएगा y square plus x. ठीक है, तो it's a required answer. Now let us take 5th question. Find the differential coefficient of this function, यानी कि x square y with respect to x, where
x and y are connected by the relation x square plus xy plus y square is equal to 1. ठीक है, तो हम इसे लेंगे u एंड ये आपको x और y का रिलेशन गिवन है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इसको कंपेयर करेंगे f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट से. तो इट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ f. फ्रॉम दिस function I will calculate the value of dy by d of x because this is function of two variable or here is requirement of differential coefficient of this function with respect to x. So I will take y is function of x and this will be given by this implicit function. ठीक है, तो here I wrote already कि u is equal to x square y and let us take this value and u is function of x and y, two variable है and this is the relation given to me. This said कि y as a function of x. So u is function of x and y is a function of this is a function of x. So I can say कि u is composite function of x. अगर मुझे u कंपोजिट पता है और फिर मुझसे अगर कहा जाए कि du बाई डी ऑफ एक्स निकालिए तो दिस इज़ नथिंग बट, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं ना कि u इज़ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. आई विल यूज़ दिस कंडीशन हेयर. तो पहले मैं u का डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स फर्स्ट वेरिएबल दैट इज़ x. यहाँ वैसे बताया था लास्ट टाइम कि dx बाई डी एक्स पे आएगा तो वो वैल्यू आपकी है 1. करली u बाई करली ऑफ y into में dy by d of x. Now u is given to me. I can calculate the partial derivative of u with respect to x. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम राइटिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज एंड u इज x square y. तो करली u बाई करली ऑफ x, दिस इज नथिंग बट करली बाई करली x of x square y. When I differentiate partially with respect to x, my y is treated as constant. So I will write y as it is and x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज 2x. एंड सिमिलरली करली u बाई करली ऑफ y इज इक्वल टू करली बाई करली y ऑफ u इज x square ऑफ y. When I differentiate with respect to y, my x is treated as constant. So I will take this term as it is and partial derivative of y with respect to y, this is 1. So I obtained both these values. Now the question is how to calculate this value. ठीक है, तो इसके लिए I know that du by dy by d of x where y and x are related by this relation. तो ये relation मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, this is my function of two variable. तो अभी मैंने आपको बताया था this is equal to f(x) partial derivative of f with respect to x above and f of y. अब partially differentiation of this term with respect to x, ये क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ फिर आप मुझे बताएं कि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा. ठीक है, एंड लोअर टर्म में इसी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. तो दिस इज x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ऑफ y स्क्वायर. नाउ टेल मी माइनस आउटसाइड करली बाई करली एक्स लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंड यू विल टेक दिस डेरिवेटिव टर्म्स इनसाइड. तो फर्स्ट यू विल डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट गिव्स यू 2x. ठीक है, एंड एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो x का 1 आ जाएगा और y एस टी जाएगा. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 बिकॉज व्हेन यू डिफरेंशिएट x y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. सिमिलरली हेयर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स वाई का y के साथ आंसर x आएगा एंड इट गिव्स 2 ऑफ y. टेक द नंबरिंग ऑफ दीज टर्म्स. सपोज दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड इट इज 4. नाउ यूजिंग ऑल दीज partial derivatives in equation number 1, so it gives you du by d of x is equal to, what is the value of curly u by curly x, it's 2xy. ठीक है, प्लस curly u by curly y it's x square इंटू में माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस ऑफ 2y.
So when I simplify, I am taking the LCM here, x plus 2y LCM. So this term multiply here, this minus sign here, x square 2x plus y multiplication. When I multiply, I obtain this. आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो x square है, यहाँ पे भी x है, तो you can take it outside. So x is here, x is here, x is here. देखो यहाँ x square y है, ये 2x square y है, तो प्लस का x square y होएगा और आई एम टेकिंग x आउटसाइड, तो x square y में से यहाँ आपको मिलेगा xy, ठीक है. प्लस का 4, आई हैव टेकन x आउटसाइड, तो दिस गिव्स 4y स्क्वायर एंड माइनस 2, x इज आउटसाइड, तो x स्क्वायर. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आई विल ऑब्टेन दिस टर्म. So it is du by d of x. So it is the required answer. ठीक है? And thank you so much for watching.